بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی خوزدار میں بزدلانہ کارروائی، اسکول جانے والے معصوم بچوں کی بس کو نشانہ بنا لیا، 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید، متعدد بچے زخمی۔ بزدلانہ حملے کے سہولت کار اور حملہ آوروں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا، ISPR کا اعلامیہ۔ بھارت بلوچستان میں اپنے ایجنٹس کے ذریعے دہشت پھیلا رہا ہے۔ پاکستان سے ذلت آمیز شکست کے بعد اخلاقی پستی پر اتر آیا، بچوں کو نشانہ بنانے لگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اظہار افسوس، دھماکے کے شہید زخمیوں کو کراچی اور کوئٹہ بھیجنے کا اعلان۔ دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے، بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ خوزدار میں معصوم بچوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے پر صدر اور وزیر اعظم کا رنج و ملال۔ وزیر داخلہ نے واقعہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو نے امن کے لیے دہشت گردی کا مکمل صفایا ناگزیر قرار دے دیا۔ دہشت گردی کے باعث 2 جوہری طاقتیں ٹکرانے کے قریب آ گئی تھیں۔ بھارت اور پاکستان کے عوام امن کے خواہش مند ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر یہ ممکن نہیں۔ بھارت کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اور پانی بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی کی گفتگو۔ بیجنگ میں پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ کی غیر رسمی ملاقات، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ عزم اور خطے میں استحکام پر اتفاق۔ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر زور، سہ فریقی تعاون کو علاقائی سلامتی اور معاشی روابط کے فروغ کے لیے اہم قرار دے دیا، دفتر خارجہ کا اعلامیہ۔ چین کا پاکستان کی سالمیت اور ترقی کی حمایت جاری رکھنے کا عہدہ، اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات سمیت خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر قرار دے دیا۔ بھارت کو شکست فاش دینے پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ حکومت کا ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر ان کی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ افواج پاکستان کے افسران، جوانوں، شہداء، غازیوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو آپریشن بنیان مرصوص کے دوران خدمات پر اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار۔ اعزاز افواج پاکستان، سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام کرنے کا اعلان۔ صدر، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد پر اظہار تشکر۔ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان ہیں۔ انفرادی نہیں بلکہ افواج اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قوم سے اظہار تشکر۔ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ملنے پر وزیر داخلہ بلاول بھٹو، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، اسپیکر قومی اسمبلی، گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز اور مراد علی شاہ کی مبارکباد۔ وفاقی حکومت کا فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا۔ بھارت کے ساتھ اب جو بھی بات ہوگی برابری کی بنیاد پر ہوگی۔ میلی نظروں سے دیکھنے پر پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا، رکن سفارتی کمیٹی مصدق ملک کی گفتگو۔ آپریشن سندور میں عبرتناک شکست کے بعد مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، اپنے ہی شہریوں کو پاکستان کا جاسوس بنانے لگی۔ بھارتی پولیس نے گورداسپور، اتر پردیش اور امرتسر سے عام شہریوں کو ٹھوس شواہد کے بغیر گرفتار کر لیا۔ پاکستان کا مثبت چہرہ دکھانے والی بھارتی ولاگر جیوتی ملہوترا کو بھی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ مودی سرکار میں اقلیتوں بالخصوص سکھوں اور مسلمانوں کا جینا محال، کرتارپور راہداری بند کر دی۔ سکھوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی، سکھوں کو پاکستانی ایجنٹ ثابت کرنے کی مذموم کوششیں شروع کر دی گئیں۔ سکھ رہنما کا مودی سرکار سے مذہب کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھانے کا مطالبہ۔
जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और भारत का मई के आखिर तक अफवाज को मामूल की पोजीशन पर लाने पर इत्तेफाक। दोनों अफवाज की मामूल की सरगर्मियां भी बहाल होने लगी। भारत ने वाहगा पर परचम उतारने की रोजाना होने वाली तकरीब दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद मजीद कितने दिन बंद रहेंगी, फैसला कल होगा। फजाई हदूद की बंदी से भारतीय एयरलाइंस को 8 अरब रुपए का नुकसान। भारतीय एयरलाइंस को एक माह में ईंधन की बद में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात अदा करना पड़े। तवील दौरानिया की भारतीय परवाजों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब रुपए के अलग से अखराजात का सामना। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। भारत ने दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश अपनाई हुई है, जो मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मुबाहिसे में इजहार ख्याल। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान शेख का लॉस एंजलिस में अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेस एक्स का दौरा। पाकिस्तान और स्पेस एक्स के दरमियान मुमकिन ताउन बिलखुसूस स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। जजेस का ट्रांसफर मुस्तकिल नहीं उबूरी होता है। तबादले पर आए जजेस को इजाफी अलाउंसेस मिलते हैं। वकील बानी पीटीआई के दलाइल। मेरी राय में तो तबादले पर आए जजेस को कोई इजाफी अलाउंस नहीं मिलता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों को कुचलने का केस। मुलजिम हाशिम अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिमान का सहते जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर इस्तगासा के गवाहान तलब। सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर आरिफ अलवी और अहले खाना के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का केस। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 5 जून तक जवाब तलब। नौशहरों फेरोज में दूसरे रोज कशीदगी। मुजाहिरीन का लाश के हमरा कौमी शाहरा पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग। रहीम यार खान मोटरवे पर ड्राइवर को नींद आने से बस आमों से भरे ट्रक में घुस गई। 4 मुसाफिर जाँ बहक और 26 जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत बस कराची से पाकपतन जा रही थी। फैसलाबाद में शालीमार एक्सप्रेस बगैर फाटक के रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रॉली से टकरा गई। कई बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में ट्रेन ड्राइवर समेत 11 अफराद जख्मी हुए। लाहौर में कैनाल रोड पर गाड़ी नहर में गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशें जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची के इलाके सोहराब गोट पर पुलिस के मुकाबले में मुलजिम हलाक। 2 साथी फरार होने में कामयाब। अजीजाबाद में मुकाबले के बाद मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। किमाड़ी में पीएमटी चोरी करने की कोशिश करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। साहिवाल में सीटीडी से मुकाबले में 1 मुलजिम हलाक, 2 साथी फरार हो गए। पुलिस एहलकारों के रोकने पर मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 1 मुलजिम मारा गया। रावलपिंडी के सैदपुर रोड पर सीरीज लाइन में धमाके से एक शख्स जख्मी। धमाके से सड़क पर दरारें पड़ गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने धमाके के मकाम को सील कर दिया। मुल्क में 2 नए पोलियो केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत और बनू से पोलियो के केसेस सामने आए। कौमी इदारा सेहत ने नए केसेस की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 10 हो गई। बिजली 1 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करवाई। 29 मई को नेपरा में समाप्त होगी। डोनाल्ड ट्रंप का जदीद तरीन दिफाई निजाम गोल्डन डोम का बाज़ाब्ता ऐलान। मकसद अमरीका को मिसाइल हमलों से महफूज बनाना है। गोल्डन डोम दुनिया के किसी भी हिस्से से आने वाले मिसाइल को मार गिराएगा। मंसूबे पर $175 अरब लागत आएगी।
सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना के इजलास में अमरीकी सदर के दौरे के मुस्बत नताइज की तारीफ, दो तरफा ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक और मुआशी शोबे में तारीखी पेशरफ्त करार दी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात और अमरीका के दरमियान बड़ा दिफाई मुआहिदा हो गया। अमारात और अमरीका में फौजी ताउन के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया। अमारात अमरीका पार्टनरशिप में मिसाइल प्रोग्राम शामिल, साइबर सिक्योरिटी आफात से निमटने और ऑपरेशनल प्लानिंग को भी फरोग दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने गजा में जारी जारहियत पर इसराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला कर लिया। यूरोपीय यूनियन के इजलास में 17 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से तिजारती और सिफारती मुआहिदों पर नजरसानी की हिमायत की। इसराइल और यूरोपीय यूनियन में तिजारत 45 अरब यूरो सालाना से ज़ायद है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर बरतानिया ने इजराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इजरायली सफीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। बरतानवी वजीर खारजा ने वाज़े कर दिया, गजा जंग बरतानिया इजराइल ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रही है। बरतानिया अपनी मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है। इजराइल का रद्द अमल। But the best foreign aid is foreign aid that ends. You know why it ends? What is going on? Stop it! Israel is a genocide! Stop it! अमरीकी सेनेट कमेटी में इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की तकरीर के दौरान फ़लस्तीनी हामी शख्स ने अचानक खड़े होकर नस्ल कुशी बंद करो का नारा लगा दिया। अब सिक्योरिटी एहलकारों ने नारा लगाने वाले को पकड़कर बाहर निकाल दिया। इजराइल ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। ये वाज़े नहीं कि इजरायली रहनुमाओं ने ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले का हतमी फैसला किया या नहीं, अमरीकी टीवी का दावा। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा करना आसान नहीं होगा। मुज़ाकरात में बातचीत ईरान की अफजूदगी सलाहियतों पर मरकूज रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दावा, इम्कान है कि अमरीका से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आयतुल्लाह ख़ामनाई को शुकूक व शुबहात। पीएसएल सीजन 10 के पहले प्ले ऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। फातेह टीम इवेंट के फाइनल के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन शाह फरीदी और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया। फख्र जमान, साइम अयूब, हसन अली, हुसैन तलत की टीम में वापसी। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। शादाब खान उनके नायब होंगे। और चाय जिंदगी और रिवायात का लाजमी हिस्सा बन गई। एक प्याली जिस्म और जहन को तरोताज़ा करने के लिए काफ़ी। चाय की चुस्कियां बैठक को खुशगवार, हसीन लम्हात को मजीद यादगार बनाती हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाय का दिन मनाया जा रहा है।